اس کے علاوہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس بے ہوشی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن تکلیف نہیں ہوتی مجھے۔ امی تو بس خامخواہ پریشان ہوتی رہتی۔ ہائے، تمہاری قسمت کو دیکھ کے تو رشک آتا ہے خدا کی قسم، ہر طرح سے خوش قسمت ہو۔ کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی، میں بھی اتنی خوش قسمت ہوتی۔ مجھے ڈنر پر لے جاتے ہو، میری این جی او میں دلچسپی لیتے ہو، لانگ ڈرائیو پر لے جاتے ہو، رش کرتی ہیں وہ میری زندگی پر۔ وہ روٹتی، ہم اسے مناتے، نخرے کرتی، مجھے تو سب اچھا لگا۔ جو جی میں آتا ہے نا وہی کرتا ہے۔ جاؤ تم بھی اپنے کمرے میں، دفع ہو جاؤ تم۔ ماں کا پیار تو اسے نہیں مل سکا، لیکن جس طرح آپ نے زندگی بھر اس کا خیال رکھا اور اب جس طرح یہ سارے فرائض ادا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے تھینک یو۔ مقبول ترین اور دلوں کو چھو لینے والا ڈرامہ سیریل بیٹی کا گھر کون سا اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں جذباتی مناظر اور کہانی کی سنسنی اپنے عروج پر ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی بہترین پروڈکشن، سیما غزل کی شاندار قلم کاری اور زاہد محمود کی باکمال ہدایت کاری نے قسط 31 میں ڈرامائیت کا وہ طوفان کھڑا کر دیا ہے جس نے ہر دیکھنے والے کی آنکھیں نم کر دی ہیں۔ کہانی اب اس احساس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ایک طرف جہارا بیگم کی فرعونیت، حسد اور 3 بیٹوں کا تکبر حدیں پار کر رہا ہے، تو دوسری طرف مظفر علی کی بیٹیوں کا صبر، عزت نفس اور اپنے وجود کو بچانے کی آخری جنگ جاری ہے۔ آج کی اس خصوصی اور مفصل ویڈیو میں ہم قسط 31 کے ہر ایک منظر، ہر ایک تانے، ہر ایک جذباتی ڈائلاگ اور کرداروں کی نفسیات کا ایسا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ آپ کو اس قسط کا پورا ماحول اپنے سامنے محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے قسط 31 دیکھ بھی لی تب بھی اس وائس اوور کے ساتھ آپ کو کہانی کا ایک بالکل نیا اور گہرا پہلو سمجھ آئے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آخری مناظر آپ کو روایتی سوچ کے دھاگے ہلا کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، قسط 31 کا پہلا منظر ہی ناظرین کے دلوں میں عجیب سی گھٹن اور غصہ بھر دیتا ہے۔ کیمرہ جہاں بیگم کے اس وسیع، شاندار اور چمکتے ہوئے ڈرائنگ روم کو دکھاتا ہے جہاں دولت تو ہے، تحاشا ہے، لیکن سکون اور اختلاقیات کا دور تک نام و نشان نہیں۔ جہاں بیگم ہمیشہ کی طرح صوفے پر تکیہ لگائے تحسین بیگم کے سامنے غرور سے گردن اٹھائے بیٹھی ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود کو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور برتر عورت سمجھتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ 3 بیٹوں کی ماں ہونا اس معاشرے کا سب سے بڑا تمغہ ہے، اور جس عورت کے پاس بیٹے ہیں وہ باقی تمام دنیا پر حکومت کرنے کا حق بھی رکھتی ہے اور ہنر بھی۔ تحسین بیگم کے سامنے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے جہاں بیگم اپنے ہی خاندانی وقار کے قصیدے پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ وہ ہر بات میں مظفر علی اور ان کے بیٹیوں کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ وہ تحسین بیگم سے کہتی ہیں، غریبوں کے گھروں سے آنے والی لڑکیاں جب اتنے بڑے محلوں میں قدم رکھتی ہیں تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ اسی اثناء میں فضا کچن سے چائے اور لوازمات کے ٹرے سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ہے۔ فضا کے چہرے پر خوف کی پرچھایاں، جسمانی تھکن اور آنکھوں کے گرد اداسی کے سیاہ حلقے صاف بناتے ہیں کہ وہ اس سسرال میں کتنی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جہاں بیگم کی اس تربیت کو سر جھکائے ہوئے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جہاں بیگم کی تیز اور زہریلی نظر جیسے ہی فضا پر پڑتی ہے ان کے لہجے کی کرواٹ دگنی ہو جاتی ہے۔ وہ تحسین بیگم کی طرف دیکھ کر بلا واسطہ فضا کو نشانہ بتاتے ہوئے
निशाना बनाते हुए कहती हैं, जहां बेगम, देखो तहसीन, तुम जैसी गरीब और मुफलिस औरत के पास है ही क्या। बाप की बेटियां जब इतने बड़े घरों में आती हैं तो सोचती हैं कि शायद उनकी सोई हुई तकदीर बदल गई है, लेकिन तुम लोग ये बात भूल जाती हो कि ख़ानदानी वक़ार, ख़ानदानी तरबियत, नस्लों का वक़ार, खून की गर्दिश बाज़ार से ख़रीदी नहीं जा सकती। जो तरबियत छोटे घरों में मिलती हैं वो बड़े घरों के मयार पर कभी पूरा नहीं उतर सकती। फ़िज़ा, जो हर रोज़ इस कसम की ज़हर अफशानी सुनने की आदी हो चुकी थी और हमेशा खामोशी से सर झुकाकर निकल जाती थी, इस बार अपने बाप की ज़ात और तरबियत पर तंज़ सुनकर बिखर जाती है, टूट जाती है। उसकी इज़्ज़त नफ्स पर एक गहरा ज़ख़म लगता है। वो चाय के प्याली को कपकपाते हाथों से मेज़ पर रखती है, अपनी नज़रें उठाकर जहारा बेगम की आंखों में देखती हैं और दिल के गुबार को आवाज़ देते हुए कहती है, फ़िज़ा, अम्मी जी, मैंने जब इस घर में पहली बार कदम रखा तो उसे अपना ससुराल नहीं, अपना असली घर समझकर कदम रखा था। मैंने हर रिश्ते को दिल से अपनाया, मगर सच तो ये है कि आपके दिल के दरवाज़े मेरे लिए और मेरी बहनों के लिए कभी खुले ही नहीं थे। आपने मुझे बहू बनाना तो दूर, इस घर का एक आम इंसान भी नहीं समझा। ये मंज़र नाज़रीन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब एक साबिर बहू का पैमाना लबरेज होता है तो उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज ससुराल के ईवानों को हिला कर रख देते हैं। इसके बाद कहानी का रुख हुमायूं अशरफ यानी रज़ा और फ़िज़ा के बेडरूम की तरफ मुड़ता है, जहाँ का माहौल ड्राइंग रूम से भी ज़्यादा सर्द और तकलीफ़दा है। फ़िज़ा अपने कमरे में बिस्तर के कोने पर बैठी अपने दुपट्टे के कोने से आंसू पोंछ रही है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। दूसरी तरफ रज़ा अपने लैपटॉप और मोबाइल में मगन आरामदाह कुर्सी पर बैठा है। उसे अपनी बीवी की हिचकियों, उसके आंसू और उसके सवाल पजीर ज़हनी हालत से कोई गर्ज नज़र ही नहीं आती। वो अपने दफ्तरी काम या सोशल मीडिया में इस तरह गुम है जैसे कमरे में कोई दूसरा इंसान मौजूद ही ना हो। फ़िज़ा हिम्मत जमा करती है, अपने कपाते कदमों से उठकर रज़ा के बिल्कुल करीब जाती है और उसके आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा और गुस्से को मिले जुले तासरात के साथ अपने दिल का बोझ हल्का करने की हर दीवार, हर कोने और हर फाज से गैर होने का एहसास दिलाया जाता है। मुझे रोज़ ये याद दिलाया जाता है कि मैं एक एहसान के तहत यहाँ रह रही हूँ। रज़ा, तुम मुझे बताओ, आखिर बेटी का अपना घर कौन सा होता है? वो मैके में पराई समझी जाती है और ससुराल में गैर, तो फिर उसका अपना वजूद कहाँ है? रज़ा जो अपनी माँ के सहर और बेजा इताअत के ज़ेरे असर है, फ़िज़ा के इस दर्द भरे सवाल का जवाब देने की बजाय चिड़चिड़ा हो जाता है। वो मोबाइल को ज़ोर से मेज़ पर पटकता है, गुस्से से फ़िज़ा की तरफ देखकर चिंगारता है। रज़ा फ़िज़ा से कहता है, फ़िज़ा, रोज़ रोज़ का ये ड्रामा और ये जज़्बाती तकारीर बंद करो। तुम मेरी माँ के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। वो जो भी कहती हैं इस घर की बेहतरी के लिए कहती हैं। मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता और ना ही उनके आगे कुछ कह सकता हूँ। सुन सकता हूँ, ना ही उनके आगे बोल सकता हूँ। अगर तुम्हें इस घर में इज्जत से रहना है तो समझौता करना और बर्दाश्त करना सीखो। अगर तुम्हें लगता है तुम हर बात पर शिकायतें करोगी तो अपनी ये शिकायतें अपने तक ही रखो। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। रज़ा का ये बहस ठंडा और ज़ालिमाना रवैया मशरक़ी मुआशरे के उन तमाम शोरों की अक्कासी करता है
जो बीवी पर होते हुए जुल्म पर आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी माँ की गलत बातों को भी एहतराम का नाम देकर बीवी की ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं। नाजरीन, ड्रामे का मंजर अब बदल कर मुज़फ़्फ़र अली यानी कि खालिद अनम के इंतहाई सादा, छोटे मगर बावकार घर की तरफ मुंतकिल होता है। यहाँ जहाँ आरा के महल की तरह ना तो कीमती जवाहर हैं और ना ही रिज़्क बर्क फर्नीचर, मगर इस घर में मोहब्बत, खलूस, शराफत और बेटियों के लिए बेपनाह दर मौजूद है। सैन में लगे पुराने दरख्त के नीचे लकड़ी की एक पुरानी चारपाई पर मुज़फ़्फ़र अली बैठी हैं। उनके चेहरे पर पड़ी गहरी झरियाँ उनकी उम्र का नहीं बल्कि उनकी बेटियों की फ़िक्र और गम का पता दे रही हैं। वो हाथ में तस्बीह लिए गहरी सोचों के समंदर में डूबे हुए हैं। नुसरत सबिया हाशमी बावर्ची खाने से गरम चाय का एक प्याला लेकर आती हैं और मुज़फ़्फ़र अली के पास बैठकर उन्हें हौसला देने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़र अली के दिल का गुबार उनके लफ्ज़ों से छलक पड़ता है। वो एक ठंडी और लंबी आह भरते हैं और कपाती आवाज़ में कहते हैं, नुसरत, मैंने जब से इन बेटियों को अपने हाथों में उठाया है, मैंने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा। लोग कहते थे कि मुज़फ़्फ़र अली, बेटियां पराया धन होती हैं, ये दूसरों की अमानत होती हैं। मैंने इन्हें अपने खून से सींचा, अपने कलेजे से लगा कर पाला, इन्हें इज़्ज़त, हया का सबक दिया। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि मेरी फ़िज़ा, मेरी मासूम बच्ची अपने ससुराल के इतने बड़े महल में सुकून की एक सांस के लिए तरसती है, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। ससुराल वाले उसे ताने देते हैं कि वो एक गरीब बाप की बेटी है। नुसरत, क्या गरीब होना कोई गुनाह है? या अल्लाह, मेरी बेटियों के नसीब अच्छे कर, उन्हें उनका जायज़ हक़ और सुकून अता फरमा। ये मंज़र पाकिस्तान के हर उस गरीब और शरीफ बाप के जज्बात की तर्जमानी करता है जो अपनी बेटियों को हंसते मुस्कराते अपने तमाम वसाइल निछावर करके रुखसत तो कर देता है, मगर जब ससुराल से उनकी तकलीफ़ और जहरीली बातें उसके कानों तक पहुंचती हैं तो वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है। इस किस्त की सबसे बड़ी और अहम पेश अली और आयज़ा के किरदार के ज़रिए सामने आती है, जो कहानी को एक नया मोड़ देती है। अली, जो जहांआरा बेगम का दूसरा बेटा है, अपने बड़े भाई रज़ा की तरह अंधा, बेहिस और माँ का ग़ुलाम नहीं है। वो एक पढ़े लिखे, बाज़मीर और इंसाफ पसंद इंसान का रूप धारे हुए हैं। ड्राइंग रूम के एक गर्म मंज़र में जहांआरा बेगम आयज़ा पर तीखे तंज कर रही होती हैं, उसके ख़ानदानी पस मंज़र को निशाना बना रही होती हैं। आयज़ा खामोशी से अपने आंसू पी रही होती है कि अचानक अली वहाँ दाखिल होता है। वो अपनी माँ को अपनी भाभी और बीवी पर जुल्म करते देखकर खामोश रहने की बजाय आगे बढ़ता है। जहांआरा के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अली की आंखों में सच्चाई की चमक और लहजे में एक मजबूत बगावत होती है। अम्मी, बस अब बहुत हो गया, अब आपका ये जुल्म और मज़ीद नहीं चलेगा। आपका ये गुरूर, ये दौलत का घमंड और 3 बेटों की बर्तरी का इल्ज़ाम एक दिन इस पूरे घर को जलाकर राख कर देगा। अगर रज़ा भाई अपनी बीवी के हकूक़ के लिए अंधे और बेरे बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जो कर रही हैं वो सही है। नाइंसाफ़ी, जुल्म और तानू की बुनियाद पर खड़े किए गए महल ज़्यादा देर कायम नहीं रहते अम्मी। एक दिन ये दीवारें आप पर ही गिरेंगी। जहांआरा बेगम, जिन्होंने आज तक अपने बेटों से सिर्फ जी अम्मी और जी बेगम सुनना सीखा था, अपने ही सगे बेटे के मुंह से सच्चाई का ये नंगा रूप देखकर शशदर रह जाती हैं, शशबंद रह जाती हैं।
उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका जिस्म लरजने लगता है कि उनका अपना बेटा उनकी फिरौनियत को चैलेंज कर रहा है। नाजरीन, किस्त 31 के आखिरी 5 मिनट इतने सनसनीखेज हैं कि नाजरीन की सांसें रुक जाती हैं। रात के वक्त पूरे घर के सामने जहांआरा बेगम फिज़ा पर एक ऐसा झूठा और घिनौना इल्ज़ाम आयद कर देती जो उसकी पाकदामनी और नीयत पर सीधा हमला होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जहांआरा का मकसद फिज़ा को उसके शौहर की नज़रों से गिराना और उसे जलील करके घर से निकालना होता है। रज़ा हमेशा की तरह अपनी माँ का साथ देते हुए फिज़ा पर चिल्लाता है और उसे खामोश रहने की ताकीद करता है। फिज़ा जो अब तक, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी तवक्को जहांआरा बेगम और रज़ा को बिल्कुल नहीं थी। फिज़ा जो अब तक मज़लूमियत का मुजस्समा बनी हुई थी, अपने आंसू पूछती है। उसकी आंखों का खौफ ख़त्म हो जाता है। उसके चेहरे पर हर एक चट्टान जैसा आज़म नमूदार होता है। वो रज़ा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी होती हैं और चीख कर कहती हैं, फिज़ा, रज़ा, अब बस एक लफ्ज़ और नहीं, मैंने आपके और आपके इस घर के नाम पर अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, अपनी सेहत और अपनी मुस्कुराहटें कुर्बान कर दी, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत, उनकी तरबियत और अपने वजूद पर हर नहीं आने दूँगा। अगर आपकी नज़र में मेरी कोई वक़्त नहीं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं तो सुन लें, ड्रामा मेरा भी इस ज़ब्त में घर में अब आयला कोई का ताल्लुक नहीं। किरदार इस एक आखिरी घमंडी औरत के तौर पर किया गया इस है, तारीखी फैसले जिसकी पर इज्जत पर किस कई 31 बार का इख्तिताम एक धमाके के साथ होता है। इल्ज़ाम उछाले ड्रामे गए, का फरीज जिसको कई बार हर्ट नाज़रीन किया को गया, इस सोच के साथ छोड़ जाता है क्या फिज़ा जिसको अपने अब बाप ने हमेशा के लिए अपने इस असार घर की से दहलीज जैसे कि पार उतारना हो, कर बस जाएगी। उसी तरह उसी से शादी कर ली है। नाज़रीन, आयला अगर हम शामी से मोहब्बत मजबूरी करती तौर थी पर इस और उसे 31 का अपनाना चाहती थी, फनी और लेकिन नफ्सियाती ओन जायजा लें आयला से तो मोहब्बत ये इस करता था, ड्रामे की लेकिन बेहतरीन आयला अक़साद में उनसे से बेपनाह एक थी। नफरत करती सपा थी, फैसल की जिसकी अदाकारी, वजह से इन दोनों की सपा शादी फैसल तो ने हो सास के गई, लेकिन नेगेटिव ना होने किरदार की को बराबर थी। जिस बुलंदी घर पर में हर पहुंचाया वक्त है फसाद वो उनकी बेहतरीन और सलाहियतों का झगड़े होते सबूत थे। है। उनका हंसना, ओन तंज उसके साथ करना, बहुत ज़्यादा गुरूर से अच्छा देखना सलूक करता था। किरदार को उसे बिल्कुल किसी हकीकी चीज़ बना की देता कमी है। नहीं थी, न मोहम्मद खाने शेख की का न किरदार पीने की। फिज़ा के वो किरदार जो के भी जरिए करती थी, मशरक़ी औरत ओन के साथ चुपचाप फिर उसके सहता एहतजाज रहता को रहा। जिस आखिरकार खूबसूरती से पेश किया और है वो काबिल आयला की तहसीन है। एला की बात तो छोड़ो, समाजी पैगाम, जबकि आयला की ये माँ ड्रामा शमसा हमारे वो कहती मुआशरे है की कि इस ओन तल्ख़ हकीकत को हमारी बेनकाब जूती के करता नोक है पर कि बैठा था बेटे और आप हम इसे सर पैदा पर करना ताज कोई कैसे कमाल बना नहीं, लें। बल्कि तो उनकी वहाँ पर सही ओन कहता तरबियत है, करके चाहे तो उन्हें आप एक अच्छा मुझे शौहर, सर का ताज ना इंसाफ बनाएं, पसंद लेकिन मुझे इस इंसान तरह हार्ट बनाना पे ना क्या करें। असल कामयाबी वो है। कहता है कि तुम आप हमारी कर्ज किस्त के बारे में दौलत पे क्या शीशनाक ख्याल है? बांध कर क्या बैठ गए अली हो, अपनी करोड़ों माँ की के बैठे गुरूर को बिठाए तोड़ तुम्हें पाएगा? क्या फैक्ट्री रज़ा मिल को गई अपनी और गलती तुम्हें का एहसास क्या होगा? चाहिए? लेकर तो उन फिज़ा कहता है कि के वो तमाम फैक्ट्री आप सच्चे मुझे डायलॉग नहीं, और ना सस्पेंस ही मैं इसका सामने मालिक लाने हूँ। वाले हैं ये भी जिन्होंने जानती पूरे मेहरबानी पाकिस्तान है कि को उसने मुझे रुला इस कर लायक रख दिया है। समझा वीडियो को और आखिर मैं तक लालची देखिएगा किस्म का इंसान नहीं क्योंकि हूँ, आज बस मुझे आयला से मोहब्बत थी और क्योंकि आज इसीलिए जहांआरा मैंने बेगम इससे के शादी की तकब्बुर और और रज़ा मेरा की कोई खामोशी का इरादा नहीं था पूरा सच कि फाश होने फैक्टर वाला हासिल है। करने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अगर आयला आप कहती है उनसे, पाकिस्तानी ड्रामा मैं इंडस्ट्रीज जानती हूँ का तुम्हें, सबसे ज्यादा तुम देखा कितने जाने वाला खुदगर्ज इंसान और हो। वायरल ड्रामा तुमने मुझसे बेटी शादी का की घर थी, कौन सा देख मुझे रहे हैं तलाक तो दे आज दो, की ये मुझे वीडियो तलाक दे दो। आपके लिए एक लेकिन बहुत ओन बड़ा कहता है, सरप्राइज होने तुम वाली जो है। भी कह दो मैं आज तुम्हें की तलाक नहीं इस दूंगा, एक तुम्हें घंटे की इसी घर मेगा में रहना स्पेशल वीडियो पड़ेगा, में वो हम भी ड्रामा मेरे साथ। बेटी का घर कौन सा की किस्त आयला नंबर जैसे 1 से कैसे लेकर करके अब तक की उनके पूरी साथ कहानी रहने लगी। एक एक किरदार के बोले गए इस तरह सच्चे कुछ डायलॉग्स, एपिसोड अदाकारों की आपसी झगड़े में गुजर बातचीत, गई उनके और चेहरे के तासुरात और उनके ड्रामा के पसे ज़ब्त पर्दा में छुपे दूसरी मकासद तरफ का हमें ऐसा दिखाया गया गहरा है तज्जिया करने वाले हैं जो आपने यूट्यूब पर जोया का पहले कभी किरदार, नहीं जो देखा कि होगा। आयला की इस बहन वीडियो को है बगैर स्किप और किए वो बहुत ही आखिर तक अच्छी लड़की है देखिएगा और क्योंकि उसका अपने आज हम बाप इस पर ड्रामे बहुत का ज़्यादा एक एक एतमाद सीन है। खोलकर आँख आपके बंद सामने करके रखने वाले उसका हैं। बाप उस कहानी पर की शुरुआत होती है भरोसा करता जहांआरा है, बेगम लेकिन के वो नहीं उस जानता शानदार और कि आलीशान बंगले जोया से भी किससे जहां मोहब्बत हर तरफ करती है, दौलत क्योंकि और इस ड्रामे तकब्बुर में का मोहब्बत बोलबाला को है। गुनाह समझा जाता जहांआरा है। बेगम जिस तरह जिसका आयला ने किरदार पाकिस्तान की माया शामी नाज से मोहब्बत अदाकारा की थी, सबा फैसल उसके ने बाप ने गुनाह निभाया समझा है। और उसको एक ऐसी जबरदस्ती औरत है ओन से शादी जिनकी करवा जिंदगी दी। का मकसद
सिर्फ तो अपनी आना, ज़ोया अब अपने राफे गुरूर से और मोहब्बत अपने करती है। तीन बेटियों राफे को जो है तीन वो बेटों भी के बताते हैं कि राफे बर्तरी कौन को है कायम आपको। रखना है। वो राफे अपने जो बड़े है बेटे रजा को अपने पास बुलाती हैं वो तो ओन का अपने दोस्त है डाइनिंग और रूम में एक सोफे पर ओन के तकब्बुर से भाइयों की बैठकर तरह है। चाय का कप और हाथ में जब लिए ज़ोया रजा ओन से से कहती मिलने हैं, आती है रजा तो उसकी तुम नज़र मेरे बड़े बेटे हो, राफे पर पड़ती इस है खानदान और के राफे वारिस भी हो, एकदम उसको मेरी भी झटका इज्जत लगता है और मेरे इस फौरन इन खानदान दोनों का के दिलों में एक दूसरे के दारोमदार लिए तुम्हारे मोहब्बत पैदा फैसलों हो से जाती है। जुड़ा हुआ और है। जैसे जैसे ज़ोया मैं आती इस है घर इन में दोनों के ऐसी दिल बहू में लाना बातचीत चाहती होती हूँ है जो और मेरे सामने इनमें अपने पर मोहब्बत काट हो कर रख जाती दे, है। जब जो इनमें मेरे मोहब्बत गहरी इशारों हो पर जाती चले है तो और ये एक जिसका दूसरे का खानदानी फ़ोन नंबर पस भी ले मंज़र लेते हैं हमारे और मायार फ़ोन के पर मुताबिक रब्ता हो। करने लगते हैं। रजा जिसका खानदानी फ़ोन पस पर मंज़र जैसे रात हमारे इनकी मायार के मोहब्बत मुताबिक बहुत ना ज़्यादा बढ़ होगा, चुकी मैं होती उससे है हरगिज़ तो वहीं बहू पर नहीं बनाऊंगी। वहीं रजा पर जिसका साकिब किरदार कहता है हमायूं कि अशरफ मैं ने ज़ोया का बखूबी निभाया है, रिश्ते वाले एक आने ऐसा वाले बेटा हैं। है तो ज़ोया जो अपनी माँ सुनकर के बहुत सामने ज़्यादा हमेशा परेशान हो जाती है। अपने हाथ वो दिल में जोड़कर सोचती है और सर कि मैं झुकाकर तो राफे खड़ा से मोहब्बत रहता है। करती हूँ। रजा आजी फिर से अगर अपनी अब्बा ने माँ का मेरी हाथ शादी कहीं और पकड़ता कर है दी तो मैं और क्या नीची करूँगी, आवाज मैं में खुश कहता नहीं है, रह माँ पाऊंगी। जी और इसी आपका हुक्म, इसी बात मेरा की सर टेंशन आंखों लेकर पर, वो आप जैसा जाती है कहेंगी राफे के मैं पास। बिल्कुल राफे वैसा ही राफे करूँगा। के पास लेकिन आपको जैसे भी जाती है मेरी एक राफे बात ज़ोया माननी से पूछता होगी, है क्योंकि तुम मैं इतनी फिजा से परेशान क्यों बे हो, इंतहा मोहब्बत तुम्हें करता क्या हूँ। हो गया है। वो लड़की वो कहती बहुत है सादा, कि शरीफ, मैं परेशान इसलिए बाइखलाक हूँ और कि तमीज़दार मेरे लड़की रिश्ते है, वाले आ आपको रहे हैं। कभी भी किसी उन्होंने मौके मुझे की प्रपोजल भी शिकायत दे नहीं दिया है। देगी। तो राफे कहते हैं कि तुम वो साफ आपको मना कर दो। माँ से तो बढ़कर ज़ोया भी कहती है कि ज्यादा किस इज्जत चीज़ के देगी। बारे में उनको रजा क्या के मुंह से कहूँगी फिजा का नाम कि सुनते उसमें ही क्या कमी है। जहां आरा बेगम का तो गुस्सा राफे कहता है 7वें कि आसमान पर वजह पहुंच जाता तुम्हारे है, सामने जहां खड़ी आरा है, जीती बेगम के जागती चेहरे मैं का कहूँ। रंग तुम कहते तब्दील तो हो मैं जाता है और वो राफे से चाय का मोहब्बत कप करती हूँ और उसी से शादी इतनी करना जोर चाहती से हूँ। तो ज़ोया जमीन पर कहती है, मारती नहीं हैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। पहले भी वो चाय का कप आयला बहन इतनी पर बहुत जोर ज़्यादा से जमीन शामी ने पर इल्ज़ाम मारती लगाए हैं थे और अब्बा में और कि हिम्मत शीशा नहीं है टूट कि जाता वो है मेरी और पूरे मोहब्बत कमरे में उसकी आवाज सुन के गूंज कबूल उठती करे। है। तो वो राफे कहते हैं, मैं गुस्से क्या से करूं, खड़ी तुम्हें होती हैं हिम्मत और आग बगोला हो तुम्हें जाती हिम्मत हैं करनी और होगी रजा की ज़ोया। आंखों में तुम इतना भी मेरे आंखें लिए नहीं कर डालकर सकती। चीख चिल्लाती हुई बोलती ज़ोया हैं, कहती वो ठीक है गरीब तो मैं बीजान बाप को मुजफ्फर अली की बताऊंगी और बेटी है, बीजान उसके अब्बा पास बाप के पास बात करेंगे। है ही क्या, 3 बेटियां तो हैं दूसरी तरफ उसके हमें दिखाया पास, जाता है जो उसके लिए एक रमला बहुत को। से ज्यादा कुछ भी रमला नहीं को है। जो तुम एक रमला एक गरीब की घमंडी, बेटी को जिसके बदसूरत बाप के और पास ढंग की ढीठ गाड़ी किस्म तक की भी औरत नहीं है। है, इस बंगले की उसको मलका इसका बनाना किरदार चाहोगी। रजा शैतानी औरत अपनी के तौर माँ पर के गुस्से के बनाया सामने गया है। बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके यानी कि पास वो ओन अपनी और मोहब्बत की आयला सफाई की में कहने के मोहब्बत लिए के बीच एक जुमला दरारें पैदा तक करती बाकी है। नहीं रहता। ओन दूसरी जब भी तरफ आयला के कहानी का करीब दूसरा रुख आने की दिखाया जाता है, कोशिश करता है जहाँ मुजफ्फर और अली आयला भी जब ओन के जिसे करीब आने की कोशिश खालिद करती अनम है ने निभाया तो है अपने छोटे से रमला और कोई ना कोई सादा ऐसा से घर में प्लान कर अपनी देती है 3 बेटियों जिससे वो फिजा, दूर चले आयशा जाते थे। और निमरा के लेकिन साथ कुछ बैठा हुआ किस्तों में है। आयला को दूर मुजफ्फर भेज अली दिया गया था, एक ऐसा जिसकी वजह से बाअदब ओन और बाप आयला की है मोहब्बत जो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा गोद बढ़ नहीं चुकी है। बल्कि अल्लाह की और रहमत समझता है। वो अपनी शमसा कहती बेटियों है के कि सर पर हाथ रखकर कहता है रमला कि मैं मेरी जानती हूँ बेटियों, तुम मेरी बहन, तुम मेरी दुनिया बेटी का चाहे तुम्हें रिश्ता कुछ भी तबाह कहे, करना चाहती हो, लेकिन तुम मेरी इसलिए आंखों की ठंडक अब हो। अगले अजमे मैंने जो तुम्हें तुम्हारी दौलत नहीं रुखसती दी, होगी लेकिन वो मैंने भी तुम्हें वो शामी तरबियत के साथ। और इज्जत दी है वो जो कहती नहीं, दुनिया की मैं शामी के किसी साथ दौलत हरगिज़ से शादी नहीं खरीदी करूंगी। नहीं जा शमसा सकती। कहती है कि फिजा तुम मुझे जिसका जानती नहीं किरदार हो, मैं तुम्हारी मोहम्मद शादी शेख ने करवा बखूबी कर निभाया है, वो करवा कहती के हैं, रहूंगी। क्यों नहीं करोगे तुम शादी अब्बा जान शामी आपको से? कभी भी पूरा दिन तो किसी उसी के शिकायत साथ का घूमती मौका है, नहीं ये मेरा मिलेगा। फ्रेंड है, ये मेरा आपकी फ्रेंड है, तरबियत ही फ्रेंड हमारी से सबसे बड़ी अब शादी दौलत नहीं है। कर हम सकती हो। कभी ऐसा कोई काम तो नहीं करेंगे रमला कहती जिससे नहीं, आपके आप सर जो की भी कहते दस्तार मैं पर शादी नहीं कोई दाग करूंगी। है। लेकिन जब रजा की दूसरी तरफ जिद के रमला का आगे बाप कहता जहाँ है आरा कि बेगम को शामी हार से माननी पड़ती है और फिजा कि का रिश्ता तुम ना रजा के अपनी साथ रमला तय को पता है, समझा दो, तो ये रुखसती ना का मेरे सीन शामी ड्रामे के का पीछे सबसे आती है। जज्बाती सीन बन जाता तो है। उन कहते हैं मुजफ्फर क्या अली आयला अपनी बेटी फिजा समझा के दूं, आयला गले शामी के लगकर पीछे रोते आती है। हुए या जो अल्फाज बोलता है शामी आयला वो हर बाप मेरी का दिल तोड़ बीवी के देते पीछे हैं। आते हैं। वो वो जानता कहते भी हैं है कि बेटा कि हमारी शादी फिजा हो चुकी है, फिर ससुराल भी इसने रमला ही का औरत फिर का भी इसने असल आयला घर का होता हाथ है। नहीं छोड़ा। वहाँ की हर तलखी को सब्र फिर कर वो कड़वा आयला घूंट को पीकर बर्दाश्त करना
रमला उसे और कहती है कभी कि तुम अपने आयला बाप की को इज्जत प्रपोज पर करो, हर्फ वो ना अभी भी आने तुमसे देना। मोहब्बत फिजा करती है, अपने वो बाप कहती से है कि वादा करती पहली हैं मोहब्बत और ससुराल की कभी भी दहलीज पर कदम खत्म रखती नहीं हैं, होती, लेकिन वो शादी की बहुत पहली ही ही रात का सदियों तक मुजफ्फर चलती रहती है। मंजर अभी भी देखकर तुम्हारी हर मोहब्बत नाजरीन का दिल आयला फट के दिल जाता में है। है। अगली तो सुबह जब डाइनिंग टेबल पर शामी सब जैसे नाश्ते के लिए जाता जमा है होते आयला हैं को तो प्रपोज फिजा करता किचन है, से तो आयला बर्तन उसे लाकर थप्पड़ बड़ी लगा इज्जत और और उसके एहतराम कान से के नीचे जहाना थप्पड़ बेगम देती के है, सामने कहती तुम्हें रखती हैं। शर्म नहीं आती? जहाना बेगम मैं अब बर्तनों को शादीशुदा हूँ, देखकर चाहे अपनी मेरी नाक ओन में से धूं नहीं जलाती बनती, हैं लेकिन और फिर हाथ भी वो एक मेरा ही हक झटके ले। से मैं बर्तन उसकी को वाइफ हूँ, दूर तुम्हें धकेल शर्म तो देती नहीं हैं। आती कि तुम्हारी वो खैर फिजा नहीं के कि मुंह अगर पर ताना तुमने मारते हुए मुझे कहती ऐसा कोई हैं कि ये प्रपोजल क्या दिया लाई हो। हो तुम,
तुम्हारे बाप तो ने उन्हें जहेज ये में सुनकर दिया ही बहुत क्या ही है? खुश हो जाता ये है। 2-4 और जब कपड़े और पुराने बर्तन और हमारे जब आयला खानदान घर की जाती बराबरी है करने चली तो थी। वो तुम तो एक सोचती है गरीब घर की कि लड़की ओन तो हो मेरे साथ इतना जिसे अच्छा हमने था, अपने बेटे उसने की बीजान से भी बेवकूफाना मेरे जिद की मेरे वजह लिए से लड़ाई इस की, घर में जगह उसने दी है, सब वरना कुछ तुम किया जैसी मेरे लिए लड़कियां और मैं हमारे उसी को बगले की गलत दहलीज समझती पार रही। करने के बस भी यही काबिल तक बात नहीं है। उनकी उसे फिजा बहुत पसंद आ जाती अपनी है आंखों में और आंसू वो लाती उनके हैं, करीब अपना होने सर लगती नीचा है। करती हैं और इंतहाई तो वो ज़ब्त के सुबह साथ सुबह बोलती हैं कि माँ जी, खाना पकाती मेरे है बाबा ने और मुझे जो कुछ कहती भी है दिया कि है वो उनकी आओ इस्तात खाना से खाओ। बहुत तो बढ़कर कौन है। हैरान उन्होंने और अपनी परेशान पूरी हो जाते जिंदगी कि की खून ये क्या पसीने हो की गया। कमाई से वहीं आयला मुझे है ये इज्जत जो दी है। कुछ दिन आप पहले मुझसे घर का मुझे जो कहती भी थी काम होटल से खा करवाएंगी लिया मैं कहीं करूंगी, ढाबे पे खा बस लेना। मेरे बाबा की मैं गरीबी सुबह के ताना मुझे नहीं ना उठ दे। सकी ना इस पर तुम्हारे लिए जहानारा खाना बना बेगम सकूं। तंजिया आज हंसती बगैर हैं पूछे और कहती हैं, खाना भी पका गरीबी ले, का चाय ताना भी ना बना दूं ले, तो वो तुम बहुत ही खुश तो क्या होता है। तुम्हारे बाप की अमेरी की कसीदे पढ़ूं? और उसे सीधी तरह महसूस भी काम नहीं करो होता और कि अपने ये बाप ऐसा की तरह मुझे कैसे हो लंबी गया है। लंबी तकरीरें मत सुनाओ। इसके बाद किचन का एक और हंगामा खेल सीन सामने आता है। फिजा सारा दिन काम करके थक जाती हैं और रात का खाना पका रही होती हैं। खाने में ज़रा सा नमक तेज़ हो जाता है तो जहानारा बेगम साहब के सामने खाना चखते हुए कहती हैं, सालन की प्लेट डाइनिंग टेबल से नीचे ज़मीन पर फेंक देती हैं। सालन की प्लेट टूट जाती है और सालन पूरे फर्श पर फैल जाता है। जहानारा बेगम चीख कर बोलती हैं, ये खाना बनाया है तुमने? नमक का डिब्बा पूरे अंडील दिया है इसमें। तुम्हारी माँ ने तुमको बावर्ची खाने का कोई काम भी नहीं सिखाया, या वहाँ भी तुम लोग यहीं जहर खाते थे? फिजा डर के मारे पीछे हटती हैं और कहती हैं कि माफ़ कर दे माँ जी, गलती से नमक तेज़ हो गया, मैं अभी फ़ौरन दूसरा सालन बना देती हूँ। लेकिन जहानारा बेगम फिर ताना देती हैं कि दूसरा सालन? तुम्हारे बाप का राशन आता है इस घर में, तुझे तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं सिखाई? उन लोगों ने रात को जब रज़ा अपने कमरे में दाखिल होता है तो वो फिज़ा के बेड के एक कोने पर बैठकर तकिए में मुंह छुपा कर रोते हुए देखता है। रज़ा फिज़ा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और तसल्ली देते हुए कहता है कि फिज़ा, तुम माँ जी की बातों को इतनी संजीदगी से पूरे ना घर लिया की करो। खुशियों को आग लगा सकता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम ड्रामा बेटी का घर कौन सा की किस्त 1 से लेकर अब तक के वो तमाम सच्चे डायलॉग्स और सस्पेंस सामने लाने वाले हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को रुला कर रख दिया। वीडियो के आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज जहानारा बेगम के तकब्बुर और रज़ा की खामोशी का पूरा सच फाश होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और वायरल ड्रामा बेटी का घर कौन सा देख रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाली है। आज की इस 1 घंटे की मेगा स्पेशल वीडियो में हम ड्रामा बेटी का घर कौन सा की किस्त नंबर 1 से लेकर अब तक की पूरी कहानी, एक एक किरदार के बोले गए सच डायलॉग्स, अदाकारों की आपसी बातचीत, उनके चेहरे के तासुरात और उनके पस्से पर्दा छुपे मकासद का ऐसा गहरा तजिया करने वाले हैं जो आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज हम इस ड्रामे का एक एक सीन खोल कर आपके सामने रखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहानारा बेगम के उस शानदार और आलीशान बंगले से जहां हर तरफ दौलत और तकब्बुर का बोलबाला है। जहानारा बेगम, जिसका किरदार पाकिस्तान की माया नाज अदाकारा सब्बा फैसल ने निभाया है, एक ऐसी औरत हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी अना, अपने गुरूर और अपने 3 बेटों की बर्तरी को कायम रखना है। वो अपने बड़े बेटे रज़ा को अपने पास बुलाती हैं और अपने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर तकब्बुर से बैठकर चाय का कप हाथ में लिए रज़ा से कहती हैं कि रज़ा, तुम मेरे बड़े बेटे हो, इस ख़ानदान के वारिस हो, मेरी इज्जत और मेरे इस ख़ानदान का शिमला तुम्हारे फैसलों से जुड़ा हुआ है। मैं इस घर में ऐसी बहू लाना चाहती हूँ जो मेरे सामने अपने पर काट कर रखे, जो मेरे इशारों पर चले और जिसका ख़ानदानी पस मंज़र हमारे मयार के मुताबिक हो। रज़ा, जिसका किरदार हुमायूं अशरफ ने अदा किया है, एक ऐसा बेटा है जो अपनी माँ के सामने हमेशा अपने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर खड़ा रहता है। रज़ा आजी से अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और निचली आवाज़ में कहता है, माँ जी, आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। लेकिन अगर आप एक बार मेरी पसंद पर गौर कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे फिज़ा पसंद है, वो बहुत सादा, शरीफ, बाइखलाक और
तमीज़दार लड़की है, वो आपकी माँ से बढ़कर इज्जत देगी। रज़ा के मुंह से फिज़ा का नाम सुनते ही जहांआरा बेगम के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो चाय का कप इतनी ज़ोर से शीशे की मेज़ पर रखती हैं कि पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज उठती है। वो गुस्से से खड़ी होती हैं और रज़ा की आंखों में आंखें डालकर चीख कर बोलती हैं कि वो एक गरीब बाप मुज़फ़्फ़र अली की बेटी है। उसके बाप के पास है ही क्या, 3 बेटियां हैं उसके पास, जो उसके लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम एक गरीब की बेटी को, जिसके बाप के पास ढंग की गाड़ी तक नहीं है, उस बंगले की मलका बनाना चाहते हो। रज़ा अपनी माँ के गुस्से के सामने बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके पास अपनी मोहब्बत की सफाई में कहने के लिए एक जुमला तक बाकी नहीं रहता। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा रुख दिखाया जाता है, जहाँ मुज़फ़्फ़र अली, जिसे खालिद अनम ने निभाया है, अपने छोटे से और सादा से घर में अपनी 3 बेटियों फिज़ा, आयज़ा और निमरा के साथ बैठा हुआ है। मुज़फ़्फ़र अली एक ऐसा बाप है जो अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत समझता है। वो अपनी बेटियों के सर पर हाथ रख कर कहता है कि मेरी बेटियों, दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरा फ़ख्र हो। मैंने तुम्हें दौलत तो नहीं दे सका, लेकिन मैंने तुम्हें वो तरबियत, वो इज़्ज़त दी है जो दुनिया की किसी भी दौलत से कम नहीं और ना ही ख़रीदी जा सकती है। फिज़ा, जिसका किरदार मोहम्मद शेख ने बड़ी ही अदाकारी से निभाया है, अपने बाप के पाँव छूती है और कहती है, अब्बा, आपकी तबीयत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके सर की दस्तार पर कोई दाग आए। लेकिन जब रज़ा की ज़िद के आगे जहांआरा बेगम को हार माननी पड़ती है और फिज़ा का रिश्ता रज़ा के साथ तय पाता है, तो रुखसती का सीन ड्रामे का सबसे जज्बाती सीन बन जाता है। मुज़फ़्फ़र अली अपनी बेटी फिज़ा के गले लग कर रोते हुए जो अल्फाज बोलता है, वो हर बाप का दिल तोड़ देते हैं। वो कहता है कि बेटा फिज़ा, ससुराल ही औरत का असल घर होता है। वहाँ की हर तलखी को सब्र का कड़वा घूंट पी कर बर्दाश्त करना और कभी अपने बाप की इज़्ज़त पर हर्फ ना आने देना। फिज़ा अपने बाप से वादा करती है और ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, लेकिन शादी की पहली ही रात का मंजर देखकर हर नाजरीन का दिल दहल जाता है। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ते के लिए जमा होते हैं, तो फिज़ा किचन से बर्तन लाकर बड़ी इज्जत और एहतराम से जहांआरा बेगम के सामने रखती है। जहांआरा बेगम बर्तनों को देखकर अपनी नाक भूं चढ़ाती है और हाथ के एक ही झटके से बर्तन को दूर धकेल देती है। वो फिज़ा के मुंह पर ताना मारते हुए कहती है कि ये क्या लाई हो तुम, तुम्हारे बाप ने जहेज में दिया ही क्या है, ये 2-4